2014 में वी एंटर्ड अ न्यू वर्ल्ड। इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला। ना टीवी पे कोई न्यूज़, ना उसका कोई स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट हुआ और ना ही किसी सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल हुई। तो ऐसा हुआ क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, कैशलेस ट्रांजैक्शंस ओवरटुक कैश ट्रांजैक्शंस। From the last 10 years, the world has been slowly progressing towards digital transactions. और यहाँ से 10 साल बाद, it is expected that many countries in the world will turn into complete cashless economies. We're seeing a corresponding increase in digital transactions as we're seeing a decrease in the use of cash. Digital payments in this crisis move from being a nice-to-have capability to a must-have essential service. The unprecedented surge in the demand for contactless payment has also shown outstanding performances from major companies offering cashless payment methods. A recent survey found that 40% of Chinese people carry less than $15 on them, but they would never dream of leaving home without this. As one guy told me on the street, you can't achieve anything without your phone. You walk around Delhi and you find signs for these digital payment platforms everywhere. Paytm, Samsung, MobiKwik, just to name a few. हाय गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लाउंज। और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ एक ऐसे सीक्रेट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसने हमारे पेमेंट सिस्टम को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इज डिजिटल ट्रांजैक्शन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? यस इट इज। क्या इससे ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिंपल और कन्वीनियंट होगा? Absolutely. But this is still not the reason why cashless transactions are picking up and cash is in a dying state. Listen carefully, क्योंकि अब जो मैं आपको बताऊंगा that will completely blow your mind away. The death of cash एक natural evolution नहीं है. It was a plan to kill cash. Two men of Silicon Valley, Peter Thiel and Max Levchin, who met in an empty hall about 20 years ago, decided to wipe out cash from the surface of this earth. उन्हें एक ऐसी रिसर्च के बारे में पता चला that had the potential to change the future of mankind. It said cash restricts you from spending. Confused? कैश आपको खर्चा करने से रोकता है. Better? No? Consider this. 10,000 rupees in your hand versus 10,000 rupees in your Paytm wallet. Which one do you think will you spend quicker? Think about it. I'll tell you. Paytm wallet. In the late 90s, MIT के एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ड्रेजन प्रेलेक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. The purpose was to understand the human brain's response when we pay in different ways, that is, with and without cash. प्रेलेक ने MIT के 500 स्टूडेंट्स को एक सोल्ड आउट बास्केटबॉल मैच की टिकट के लिए साइलेंट ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने को कहा. इस ऑक्शन में हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को कैश में बिड प्लेस करने को कहा एंड द अदर हाफ वर आस्क्ड टू यूज अ क्रेडिट कार्ड. और जब उसके रिजल्ट आए तो ही वाज टोटली स्टन्ड. क्रेडिट कार्ड की बेट्स वर 2 to 6 times larger than the cash bets. दिस मीन्स कि अगर एक कैश होल्डर 1,000 रुपीज बेट कर रहा था तो एक क्रेडिट कार्ड होल्डर 6,000 रुपीज बेट करता है. इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि कैश बिडर्स वर नॉट रेडी टू गिव अवे देयर मनी. पर क्यों? काफी रिसर्च के बाद Prelek discovered the most revolutionary theory. Cash causes actual pain. जब हम कैश से पे करते हैं तो the neural pathways in the human brain lights up like a Christmas tree. Scientific language में इसे flinch movement कहते हैं, जिसमें कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए हमारे ब्रेन में एक measurable pain होता है. इस मोमेंट में our brain is asking the hand to not let go. That is why हम जब भी कैश दे रहे होते हैं तो आवर माइंड कीप्स इवैल्यूएटिंग कि जिस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम कैश दे रहे हैं, इज इट रियली वर्थ इट? इफ द आंसर इज यस, वी मेक द परचेज. बट इफ द आंसर इज नो, तो हम प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते. बट जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो या कार्ड से पेमेंट करते हो, मतलब एनी मेथड ऑफ पेमेंट जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, देन यू आर रिमूविंग द न्यूरल पेन इन द ब्रेन. डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतनी फास्ट होती हैं कि हमारे ब्रेन को पेन फील ही नहीं होता. The only thing that remains is the pleasure of buying. इसका मतलब कि अगर हम कैश को सिस्टम से रिमूव कर दें तो वी कैन ओपन द डोर्स टू लिमिटलेस स्पेंडिंग. और इसी लिमिटलेस स्पेंडिंग के डोर को ये दो लोग, पीटर थील और मैक्स लेफ्शिन, अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे. ये दोनों जब 1998 में पहली बार मिले
तो they had just one thing in mind. They wanted to change the world. उसी साल the internet had just arrived and people were starting to see the magic of .com. पर सिर्फ एक चीज अभी तक कोई नहीं कर पाया था. Nobody knew how to monetize the internet. This was the holy grail of Silicon Valley to create a secure online payment system. अब एक पेमेंट सिस्टम को बनाने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट थी. मैक्स लेविशन वाज अ टेक जीनियस व्हाइल पीटर थील वाज अ फाइनेंस एक्सपर्ट. इन दोनों के पास वो स्किल्स थी which made them perfect partners. They both started a company by the name Confinity. Confinity की स्टोरी पाम पायलट से शुरू हुई. पाम पायलट एक ऐसा डिवाइस था जिसे पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट दैट इज PDA बोला जाता था. स्मार्टफोन एरा से पहले PDAs were the cutting edge handheld devices with the ability to connect to the internet. ये devices उस टाइम पर बहुत ही पॉपुलर थे. At that time, थील और लेविशन को एक ऐसा आइडिया आया जिसके बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा था. In Palm Pilots, they saw an older version of smartphones, a device जो बाइंग और सेलिंग के लिए यूज हो सकता था. As soon as they sensed this opportunity, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई which made person-to-person payments through Palm Pilots possible. In the year 2000, another man entered the partnership of Thiel and Levchin, the man who dreams of flying cars, talks about colonizing Mars और जिनको ट्विटर से कुछ अलग ही ऑब्सेशन है. Well yes, the man is Elon Musk. Elon Musk was the person जिन्होंने फ्लिंच मूवमेंट जैसी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी के पोटेंशियल को समझा एंड डिसाइडेड टू बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी. मस्क ने अपनी कंपनी X.com को कन्फिनिटी के साथ मर्ज कर दिया एंड दे कॉल्ड दैट कंपनी पेपैल. अपने कंज्यूमर्स को एक पेन फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए पेपैल प्रॉमिस्ड दैट ऑल द पेमेंट्स वुड बी इंस्टेंटेनियस, दैट इज जस्ट वन क्लिक अवे. अपने आप को प्रमोट करने के लिए पेपैल ने सारी मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज किया. दे वर गिविंग अवे $10 फॉर mere registration and $10 more on referring the service to another consumer. धीरे धीरे द कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग. उनके रेवेन्यूज कब $1 million a वीक से $1 million an hour हो गए पता ही नहीं चला. बट पेपैल की फिनोमिनल सक्सेस वाज ट्रबलिंग द एस्टैब्लिश्ड मनी प्लेयर्स, दैट इज द बैंक्स. Nobody knew कि पेपैल एक बैंक था या एक पेमेंट सिस्टम. Thiel said पेपैल एक ट्रेडिशनल बैंक नहीं है क्योंकि वो मनी लेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी बैंक्स थ्रेटन हो रहे थे. जैसे जैसे पेपैल बड़ा होने लगा उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी. पेपैल ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए यूज होने लगा एंड दैट गेव इट्स कंपेटिटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू टार्निश इट्स रेपुटेशन. द कंपनी वाज बर्निंग millions of dollars per month to ऑनलाइन फ्रॉड. इन फ्रॉड्स की वजह से पेपैल का काफी एक्सपेंडिचर रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में भी जा रहा था. Slowly, PayPal became the PayPal mafia. Although the PayPal founders held their nerve, उन्हें पता था कि अब PayPal को ग्रो करने के लिए एक बड़े पार्टनर की जरूरत है. एक ऐसा पार्टनर जो उनकी माफिया इमेज को ओवरशैडो कर दे. And that partner would be eBay. 2002 में PayPal did a deal with eBay for $1.5 billion. eBay was one of the first e-commerce marketplace on the internet. आज हर टेक प्लेटफॉर्म एक मार्केट प्लेस है, जैसे गूगल फॉर इंफॉर्मेशन, उबर फॉर कैब्स, एयरबीएनबी फॉर स्पेस, जोमैटो फॉर फूड एंड व्हाट नॉट. पर इन सब में से सबसे पहला मार्केट प्लेस ईबे था, जहां आपको सब कुछ मिल सकता था. शूज, फर्नीचर्स, ओल्ड कैमरास, कॉन्सर्ट टिकट्स, स्पेयर ह्यूमन ऑर्गन्स और यहाँ तक कि एक अनवांटेड हस्बैंड भी. शायद आपको ये मॉडर्न डे Amazon जैसा लग रहा होगा, पर eBay का बिजनेस मॉडल कुछ और था. ऑन eBay एक प्रोडक्ट का प्राइस जो सेलर को मिलता था दैट वाज नॉट डिसाइडेड बाय द सेलर बट बाय द बायर्स थ्रू ऑक्शंस. बायर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बिड करते थे और जो हाईएस्ट प्राइस पे करता था द प्रोडक्ट वाज सोल्ड टू दैट बायर. विद पेपैल एंड eBay's डील, eBay की 70% ट्रांजैक्शंस अब पेपैल के थ्रू होने लगी. eBay सिक्योर्ड द फ्यूचर ऑफ पेपैल. अब पेपैल को किसी बैंक से डरने की जरूरत नहीं थी. They became the new law. In fact, the PayPal founders appeared in Fortune magazine wearing sharp suits and smoking cigars. PayPal had finally arrived, this time with eBay. The eBay-PayPal partnership was offering two things जो cash नहीं दे पा रहा था. One, the addictive thrill of online auction, and two, pain-free and pleasurable shopping experience.
देखो गाइस, जब भी एक कैश ट्रांजैक्शन होती है तो बायर सेलर को कैश पे करता है और इस ट्रांजैक्शन में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन डिजिटली होती है तो somebody has to facilitate the transaction। आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मनी ट्रांसफर कर सकते हो, बी इट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा। एंड दिस इज द स्पेस where the money can be made, and this is exactly what PayPal became। इसी रेस में आज बाकी सारी टेक कंपनीज भी लगी हुई, लाइक फेसबुक, एप्पल, गूगल, Amazon, all of them want to own this space। However, PayPal को बनाने का ऑब्जेक्टिव was to kill cash and make money by facilitating digital transactions। But आज गेम कुछ और ही है। The game has become much bigger. Today, the value of these platforms is not the fee that they charge for the transaction। In fact, शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज फीस चार्ज कर रहा है। तो वैल्यू है क्या? You. Yes, you are the value, or more precisely, your data। एक बहुत ही फेमस सेइंग है, if you are not paying for the product, then you are the product। These are the places where we leave every last detail of our lives। आपको इंडियन क्यूजीन पसंद है या चाइनीज, whether you're a Friends or a BBT fan, a mountaineer or a beach person, शायद आपसे ज्यादा आपको इन कंपनीज के एल्गोरिदम्स जानते हैं। दिस कंज्यूमर डेटा helps these platforms understand the nuances of your personality। और इसी डेटा को यूज करके ये कंपनीज रेवेन्यू जनरेट करती हैं, either by selling your data to the other companies or by showing you the ads of your favorite products that would earn them ad revenues। अब कहने को तो डेटा माइनिंग बाय दीज कंपनीज इज अ प्रिवेसी इशू, लेकिन एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स आर अवेयर कि दे आर अंडर सर्वेलेंस, बट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज एन इशू वो इसे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि डेटा शेयरिंग से कंपनीज कंज्यूमर को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बेटर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती है, विच मेक्स देयर लाइफ इजी एंड मच मोर एंटरटेनिंग। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन डेटा शेयरिंग? टेल अस बाय कमेंटिंग बिलो। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। 2008 was one of the most devastating times in history। The global economy was suffering through a terrible financial crisis। Simple words में कहूँ तो US के बैंक्स गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, लीमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स ने कुछ ऐसे लोन्स दे दिए थे जो अब वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस इनमें से काफी सारे बैंक्स फेल होने लगे एंड दैट क्रिएटेड पैनिक इन द सिटीजंस। इस क्राइसिस के बाद द पीपल्स ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम स्टार्टेड शेकिंग। Ever since the advent of the internet, the US economy was flourishing on the back of massive technological advancements by the IT industry। Companies like Amazon, Google, Microsoft, Facebook were making their mark। लेकिन फिर भी what bothered these companies the most was कि फाइनेंस इंडस्ट्री अब भी उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। इसका रीज़न सिंपल था, फाइनेंस इंडस्ट्री वॉज इन कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई। टेक कंपनीज जानती थी कि अगर उनको फाइनेंस इंडस्ट्री को बीट करना है तो किसी भी तरह मनी सप्लाई अपने कंट्रोल में करना होगा। इन 2008 जैसे ही लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से कम होने लगा, the tech companies found their perfect opportunity to become the new banks of the world। But new banks बनना was not that easy। The first step was to own shopping, then provide financial services, और धीरे धीरे the plan was to take over the entire banking industry। Coincidentally, Apple launched their first iPhone in 2008 only। The iPhone launch was an attempt to shift shopping from laptops to mobile phones। But लोगों को फोन से शॉपिंग कराने के लिए they needed a new weapon, an app। जब 2008 में पहला iPhone लॉन्च हुआ था तब ऐप जैसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी। That is, there was no app store। If you are an Apple user तो आप ये जानते होंगे कि एप्पल प्रोडक्ट्स अपने अल्ट्रा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉपुलर हैं। जब आईफोन लॉन्च हुआ था तब iOS में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और सिर्फ कुछ ही एप्पल अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जा सकते थे। बट दैट चेंज्ड ओनली आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ द आईफोन लॉन्च। कुछ ऐसा हुआ दैट शूक द वेरी रूट्स ऑफ देयर सिक्योरिटी सिस्टम एंड द फाउंडर स्टीव जॉब्स हिमसेल्फ पैनिक्ड। लॉन्च के कुछ दिन बाद ही अ ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जे फ्रीमैन ने अपनी टीम के साथ iOS को जेल ब्रेक कर दिया। अब जेल ब्रेकिंग का सिंपल सा मतलब है ब्रेकिंग इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आईफोन एंड बीइंग एबल टू यूज कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो एप्पल अलाउ नहीं करता। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया
called Cydia, जिसके थ्रू वो काफी सारी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स आईफोन में यूज कर सकते थे. दिस वॉज गोइंग टू थ्रेटन द प्राइड ऑफ एप्पल, देयर सिक्योरिटी सिस्टम, एंड सो दे नीडेड टू एक्ट फास्ट. इससे पहले Cydia एक प्ले स्टोर की फॉर्म में ग्लोबली पॉपुलर होता, जॉब्स प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक. स्टीव जॉब्स ने हैकर्स को ही हायर कर लिया and asked them to create its own app store. Yes, App Store was not Apple's original idea. They got it from a bunch of hackers, and that turned Apple into one of the most successful platforms for selling. आज कोई भी पेमेंट ऐप हो, Paytm, Google Pay, WhatsApp Pay, Amazon Pay, all of them are applications which leverage the App Store. और अगर ऐप स्टोर नहीं होता तो वी वुड नेवर हैड एक्सेस टू दिस एप्लीकेशंस और ऑनलाइन पेमेंट करना कभी भी इतना इजी नहीं हो पाता. Apple CEO Tim Cook once said, "The next generation will not even know what money was." और जिस स्पीड से कैशलेस ट्रांजैक्शंस आर राइजिंग, it won't be an exaggeration to say that this day may come very soon. In the next few decades, cash will be all gone. All as a result of a casual meeting between two gentlemen who wanted to erase the pain of payments. That's it for today. For this episode, we refer to the book The Deals That Made the World. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.